very well during these tough times. Firstly, wish you all a very happy International Yoga Day. Respected dignitaries, professors, future members of LDC, I welcome you all to the orientation program of SAE, that is Society of Automotive Engineers. The SAE LDC team is glad to see you all today. You must have a rough idea about what SAE actually is from the events and competitions our club has conducted during last couple of years. Today, I will give you brief explanation about our club, all the competitions and the activities you all will be, and maybe some of you have been already a part of it, as well as the achievement we have had in the past years. So without further ado, I would like to brief you with the help of presentation. Let's move on to the presentation. Next. So first of all, we would be covering the topics in today's event are what is SAE actually, the activities conducted by SAE LDC, competitions under the SAE club, events done by LDC SAE club, and after these events, definitely you would have some questions about how to join us and how can you be a part of such a huge and such a amazing team. So don't worry, we are here. We would answer all your questions, all your queries. Also, if you feel like this is a very brief session or something that is not some doubts that is not cleared, please don't worry. We in the end of the we have arranged a doubt session also, so you can ask the queries in the last as well. Next. So now, basically, I would give you a rough idea of what is SAE actually is. So SAE is a global association of more than 1,38,000 engineers related to aerospace, automotive and commercial vehicle industries. So जैसे कि आप सब जानते होंगे या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SAE क्लब है वो ग्लोबल क्लब है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्लब है. In this 1,40,000 1,68,000 लोग इंजीनियर्स इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं. और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि LDC SAE क्लब जो है वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लब है ऑफ SAE, जिसमें LDC के 90 प्लस मेंबर्स है और सिर्फ ऑटोमोबाइल के नहीं बल्कि सारी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हमारी कॉलेज के सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के पीपल हमारे क्लब में जुड़े हुए हैं. और हमारा मोटो यही है, लर्निंग बाय डूइंग. सो व्हाट वी डू इज वी फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी rather than just bookish knowledge. We provide a platform to which we can further increase the practical knowledge, and you would witness it in the upcoming slide as well. Next. So for the activities and for the achievements, I would like to call up one of our core committee members, Mr. Jai Sharma, to hand over the presentation, to take it over. Jai, please take it over. Thank you very much, everyone. Thank you, Nirmay, for calling me. Hello, everyone. I hope you all are fine. So, as Nirmay told, that I will be explaining the activities of SAE Club. तो पहले ये बात हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि जो ऐसी एक्टिविटीज करती है वो सिर्फ ऑटोमोबाइल की रिलेटेड नहीं होती है. इसके नाम में है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, बट ये सिर्फ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये सारी फील्ड के इंजीनियर्स, सभी बच्चों के लिए है. वैसे तो ऐसे की लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बहुत ही बड़ी है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं कि कुछ मेन टॉपिक्स हम देख सकें. तो पहला है कि मीटिंग्स विद इंजीनियरिंग अथॉरिटीज. तो इसमें ऐसा होता है कि जो LDC की एल्यूमिनाइज है या फिर कोई अदर इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज है, एक्सपर्ट्स है, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन सेशन हम फ्रीक्वेंटली अरेंज करते रहते हैं. तो इसकी वजह से उनके साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं और उनको पता चलता है कि एक्चुअल वर्कफ्लो कैसा होता है. देन वी मेक प्रोजेक्ट्स भी अलॉट करते हैं ताकि उनका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी एस्पेक्ट्स में वो अपनी स्किल्स ग्रो कर सकें. देन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग, जैसे कि मैंने अभी बताया. फिर वी प्रोवाइड इनोवेटिव फ्रीडम टू आवर क्लब मेंबर्स एंड ऑल अदर्स. इवन इफ यू आर स्टिल नॉट अ मेंबर ऑफ SAE club and you arrive with some idea or some confusion, we will still help you even though you are not member of SAE. Then we provide support to creative minds. We promote careers in engineering. Yes,
we provide support in engineering careers in the way that the alumni and other authorities are still connected with us, and we provide the guidance they need, even it is a technical, non-technical, administrative, whatever it is. Then we increase students interaction with faculties and other students and other experts. कोई भी क्लब होता है तो क्लब में ये बात तो सब में कॉमन होती ही है कि अगर आप किसी क्लब के मेंबर है तो आप दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, कई फैकल्टीज के साथ भी आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, अदर एक्सपर्ट्स के साथ भी आपको इंटरेक्शन करना है, जैसे कि मैंने पहले ही लाइन में बताया. Then national and international level inter-college competition. It is one of the main topics that it is one of the main activities that SALDC does. That we will see later on. ये जो national और international activity level नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जो है उसके बारे में हम थोड़े मिनटों के बाद देखते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे हम. फिर हम प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एज आई टोल्ड. Then we arrange industrial visits, as Nirmit earlier mentioned that we believe in learning by doing. तो हम स्टूडेंट्स के ग्रुप को कई जगह पे जहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे विजिट के लिए ले जाते हैं, ताकि उनको पता चले कि जो बुक में हम पढ़ते हैं और जो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना होता है वो काफी अलग है, और ये वर्क फ्लो कैसे मेंटेन होता है. तो ये सब बातें समझने के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स भी अरेंज करती है SALDC. Then we provide support and a platform for internship program. ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपको अपना करियर भी बनाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट जॉब मिलनी तो बहुत रेयर केस है, तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड समझने के लिए इंटर्नशिप करनी भी बहुत जरूरी होती है. तो इंटर्नशिप करने के लिए प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट दोनों SALDC क्लब प्रोवाइड करती है. तो इसका मतलब क्या हुआ इन सारी एक्टिविटीज का कि हम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी हो, हम हर एस्पेक्ट में ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट को एज मैक्स एज पॉसिबल हम उनको हेल्पफुल हो सके, और उनके स्किल्स और उनकी जो वो जो उनकी स्किल्स है उनको हम ग्रो कर सके. नाउ जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ये सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है, तो मैं ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो चलिए मैं ऑटोमोबाइल के एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाता हूँ ये बात कि सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है. ये सुनने में थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसको समझते हैं. तो ये मैंने यहाँ पे इमेज अटैच की है एक कार की. तो अभी बेसिकली सब क्या सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल के बंदे हैं वो ही ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट्स है उनके साथ डील करते हैं, ठीक ऐसा नहीं होता है. The automobile is consist of various fields, right? In today's era, first there is image of electricals. तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कितने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है. लेफ्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 2-3 वायर कनेक्ट कर रहे हैं और कोई भी बंदा आके कर देगा. तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती ही है. देन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन. ये तो आप सब जानते ही होंगे कि आजकल के व्हीकल में सेंसर्स का कितना ज्यादा फोकस रहता है कि कुछ भी करना है तो सेंसर्स का यूज करो. तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की जरूरत होती है. देन ये तो आप देख के समझ रहे होंगे रबर एंड प्लास्टिक की, इसकी तो कितनी ज्यादा जरूरत है कि अगर व्हीकल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके टायर्स ठीक नहीं तो फिर देन एवरीथिंग इज यूजलेस. Now one of the main information technology and computer. Now see, हम समझते क्या है कि ऑटोमोबाइल जो डिपार्टमेंट है वो अप्लाइड मैकेनिक्स का है, और ये जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो उसके एकदम ऑपोजिट है. दो दे आर वेरी ऑपोजिट, स्टिल दे आर वेरी कनेक्टेड. आपने टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा कि टेस्ला कार ऑटो पायलट पे चलती है, ये सब वो सब आपने बहुत ज्यादा कुछ सुना होगा, उसकी मैं अभी वो बताने नहीं जा रहा. आप समझिए कि टेस्ला की जो कार है उसमें ऑटोमोबाइल का जो पार्ट है, जो पोर्शन है वो बहुत ही कम है, और जो एक्चुअल पोर्शन है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का होता है. हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिकल्स वालों का काम है, फिर ऑटो पायलट पे चलती है तो सेंसर्स वगैरह तो ईसी वालों का काम आ गया, फिर उसको सब मैनेज करने के लिए कंप्यूटर, और उसको क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो सी ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल्स जो है वो खुद एक
ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट से नहीं रिलेटेड है, तो फिर ये तो एक क्लब है, और क्लब में तो यूजुअली सारे स्टूडेंट्स होते हैं सभी ब्रांच के, तो फिर ये कैसे सिर्फ एक डोमेन का हुआ? तो इसका नाम है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, बट इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस स्टूडेंट। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर या इसी वाला बंदा हूँ या आईटी वाला बंदा हूँ, तो इस क्लब में मेरा क्या, तो मेरा क्या, तो ऐसा नहीं है, आपका भी बहुत ज्यादा काम है। आप एक बार क्लब में ज्वाइन हुइए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके स्किल्स अगर है तो उसका कितना यूटिलाइजेशन होता है, और साथ ही साथ आपकी जो स्किल्स है उसको हम बेटरमेंट के लिए भी सपोर्ट करते हैं, कि अगर आप कुछ किसी कोई स्किल में अच्छे हैं तो वो भी आपका एनहांस होगा। Now, as I have mentioned earlier, SAELDC takes part in some various national and international level inter-college competitions. So these are the list of that competitions which SAELDC does take part in. The first one is SAE Baha India. Second one is KTU Championship. Third one is SAE India Supra. Fourth is SAE NIS Cycle. Then ASME HPVC. Then Formula Student India. Then Go-Kart. Then EGVC. और ये जो ब्लैक फॉन्ट्स में आप देख रहे हैं, तो वो जिन जिन सालों में SAELDC की टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनका लिस्ट है, कि इन सालों में इन कंपटीशन में हमारे SAELDC के अंदर एक टीम बनती है, और वो टीम अपना व्हीकल या जो अपना कंपटीशन से रिलेटेड जो होता है वो बना के वहां पे जाती है, परफॉर्म करती है। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑफ देम, एंड लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट द कंपटीशंस आर। फर्स्ट वन इज SAE Baha। SAE Baha जो है वो SAE इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, ना कि SAELDC। ये एक्चुअली ये इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप है, लेकिन SAE इंडिया इसको नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करती है। और SAE Baha में जो स्टूडेंट्स की टीम होती है वो एक ATV बनाती है। ATV मींस ऑल टेरेन व्हीकल। अगर आपको सिंपली समझाओ तो एक ऑफ रोडर व्हीकल बनाना होता है, तो ये SAELDC की अंडर एक टीम काम करती है और वो बनाती है। तो जो LD कॉलेज के अंदर टीम है वो LDC मोटर स्पोर्ट्स करके टीम है, जो पूरी तरह से LDC के स्टूडेंट्स की मदद से ही बनी है। टैक्सी, तो जो मैं बात कर रहा था कि ATV बनानी होती है, वो ये ATV है। ये कुछ ऐसे दिखती है, शायद आपको ये सब ट्रैक वगैरह और ये सब ATV की कंडीशन देख के आप आ ही गया होगा कि ये कितना थ्रिलिंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल एक रोड पे रेस करवा दो। ये बहुत ही, इसके अलग अलग टास्क होते हैं, इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। आप लेफ्ट मोस्ट बॉटम इमेज में देख सकते हैं कि ATV पूरी टिल्ट हुई है अबाउट 45 डिग्री। तो ये बहुत ही थ्रिलिंग कंपटीशन है, इसमें आपको सीखने को भी बहुत मिलता है, एंजॉय करने को भी बहुत मिलता है। और आप पीछे फर्स्ट इमेज में पीछे आप पब्लिक भी देख सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी कंपटीशन नहीं है, तो इट इज अ नेशनल लेवल कंपटीशन। Here are some images of the creations of our seniors, our teams. First one was Mustang. Year by year नई नई टीम आती गई, उन्होंने अपने हिसाब से नए व्हीकल बनाए। देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट व्हीकल था Mustang, then there was Mark 1, then Mark 2, then there was Mark 3 and Mark 4, and currently we have Mark 5. अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और उस बात से मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि ये जो व्हीकल्स है कहीं हम बाहर से लाके असेंबल करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्हीकल को पूरा स्क्रैप से लेके फुल व्हीकल तक LDC मोटर स्पोर्ट्स की टीम हमारी LD कॉलेज के वर्कशॉप में ही बनाती है। तो ये अगर आप इस टीम के पार्टिसिपेंट, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे इसका डिजाइनिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मार्केटिंग होता है, स्पॉन्सरशिप लानी होती है, बहुत कुछ है। अगर आप कुछ लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि LDC मोटरस्पोर्ट्स काम कैसे करता है और ये कॉम्पिटिशन्स का है, तो इसका भी एक अलग ओरिएंटेशन हमने अरेंज किया है, वो 26 को है, और उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी। देन अब ये एक मेन बात होती है कि हम चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर ले, अगर जीतते नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। तो दिस इज सम ऑफ द मोस्ट रिसेंट अवार्ड्स विन बाय अवर LDMS टीम। तो ये जो अवार्ड्स है वो पिछले 2-3 सालों के ही है, बहुत ज्यादा पीछे में नहीं गया। अगर वो करता तो शायद आपको पूरी इमेजेस दिखती भी ना, इतनी सारी इमेजेस हो जाती। ये सारे अवार्ड्स है, लाइक फर्स्ट इन एक्सेलरेशन, फर्स्ट इन एंड्योरेंस,
थर्ड इन एंड्योरेंस, सेकंड ओवरऑल, ये सारे अलग अलग टेस्ट में हमारी एलडीएमएस टीम होती है, वो परफॉर्म करके अवार्ड्स लेके आती है. सो इट इज अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. ये कुछ पेपर कटआउट्स है जो हमारी ऐसे ऐसे एलडीसी के टीम के अंदर के जो एलडीएमएस परफॉर्म करती है, तो उसके पेपर कटआउट्स है, न्यूज पब्लिश हो, आप देख सकते हैं. इट इज द इमेज ऑफ आवर टीम एलडीसी मोटर स्पोर्ट्स 2020. अभी 2020 में रिसेंटली जो इंदौर में ऐसे ही बाहा ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वहां पे हमारी एलडीएमएस की टीम गई थी और वहां पे ये परफॉर्म करके आए थे. Now, the second competition, it is SAE Supra India. SAE Supra India is also organized by SAE India itself. SAE Supra India में जो स्टूडेंट्स की टीम होती है, वो एक फॉर्मूला 1 कार की जैसी कार डिजाइन करनी होती है. मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ. ये है जो ये कार है एक्चुअली, जो ये जो जीटीओ मोटर स्पोर्ट्स की टीम यानी जीटीएमएस टीम ने बनाई थी. इसके कैप्टन भी हमारे एलडीसी कॉलेज के ही है, और ये व्हीकल बना के जैसे एटीवी की वहां पे उसकी कंपटीशन होता है, सेम वे इसके भी फॉर्मूला 1 टाइप ट्रैक पे इसकी टेस्टिंग और इसकी चैंपियनशिप होती है. हमारी जो जीटीएमएस की टीम, जीटीयू मोटर स्पोर्ट की टीम, ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट टीम जीटीएमएस इज नॉट ओनली द टीम दैट हैज कम फर्स्ट इन इंडिया. जो जीटीएमएस की टीम है वो सिर्फ इंडिया में फर्स्ट नहीं आई, बल्कि जो ग्लोबली टीम होती है उनमें 45th रैंक पे थी. तो इट इज वन एंड ओनली टीम फ्रॉम इंडिया टू गेट इन टॉप 50 वर्ल्ड वाइड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम जीटीएमएस. This is the team I was mentioning about. This is team GTMS 2020. Now the other competition is EGVC. EGVC stands for Eco Green Vehicle Challenge. ये जो EGVC की कंपटीशन है, ये कंपटीशन ऐसे इंडिया ऑर्गेनाइज नहीं करता, ये ऐसे एलडीसी ऑर्गेनाइज करती है. ऐसे एलडीसी का जो क्लब है वो ऑर्गेनाइज करती है. और इस कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स की वेरियस टीम होती है अलग अलग कॉलेजेस की, उनको एक ट्राई साइकिल बनानी होती है, 3 व्हीलर साइकिल, और ह्यूमन पावर से चलती है. तो इस कंपटीशन का अरेंजमेंट सारा एलडीसी में होता है और उसका पूरा ट्रैक भी यही पे बनता है और टीम्स आके यहाँ पे परफॉर्म करती है. लेट्स सी, जो आप राइट साइड देख रहे हैं वो एलडी कॉलेज की ही 2018 की ईजीवीसी की टीम थी. और लेफ्ट साइड पे आप उसके कुछ पेपर कटआउट्स और इमेजेस देख सकते हैं कि कैसी ये साइकिल्स होती है, कैसे ह्यूमन पावर से चलती है. सब स्टूडेंट्स की अलग अलग डिजाइन की व्हीकल्स होती है. तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी गो कार्टिंग को भी ऐसे एलडीसी सपोर्ट करता है. गो कार्ट तो आप सबको पता ही होगा कि क्या होती है. तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप अपने स्टूडेंट की टीम बनाइए और ऐसे एलडीसी आपको जिस मैनर में भी चाहिए उस मैनर में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी बात हो, आपको ऐसे एलडीसी सपोर्ट करेगा गो कार्टिंग में भी. सो ये तो थे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप्स जो ऐसे ही इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं. और आप ऐसे ही के मेंबर है तो आप एलिजिबल है इस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. जिस भी टीम में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी कॉम्पिटिशन में आप जाइए, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. चलो, ये तो बात हो गई नेशनल इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की. लेकिन ऐसे ही एलडीसी क्या करता है, कि ऐसे एलडीसी के क्या एफर्ट्स है अपने एलडी कॉलेज के लिए. क्योंकि ये जो इवेंट्स है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल के, तो यहाँ पे तो कुछ ही स्टूडेंट्स की टीम होती है और वो वहां पे जाके परफॉर्म कर सकती है. जो इसकी एंजॉयमेंट है, जो इसका नॉलेज है, वो तो सिर्फ उनको ही मिलेगा. तो पूरी एलडी कॉलेज के लिए क्या, तो एलडी कॉलेज के लिए भी ऐसी एलडीसी अपना एक अलग एफर्ट्स लगाती है, अपने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है. जैसे कि हम पर्टिकुलर कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट पे हम जाते हैं, सेमिनार्स और वेबिनार्स होते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्कशॉप्स भी होते हैं. तो चलिए एक लिस्ट देखते हैं कि क्या ऐसे एलडीसी ने पिछले साल किया है. ये जो मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ वो पिछले 1 साल की ही है. हम उससे पीछे की बात नहीं कर रहे, कि उससे पीछे की बात करने जाएंगे तो ये ओरिएंटेशन कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा और ये आप सबको बोर कर देगा. तो चलो हम देखते हैं कि पिछले 1 साल में ही क्या किया. तो एक्सपर्ट लेक्चर्स की बात करते हैं, तो कई सारे एक्सपर्ट लेक्चर्स हुए हैं. जैसे कि गेट एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस का क्या होती है, फिर हाउ टू फेस एन इंटरव्यू,
देन एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो बहुत जरूरी होता है आफ्टर एजुकेशन। देन जैसे कि आप सबको पता है कि ये कोविड की वजह से सारे के सेक्टर क्रैश हो चुके हैं, सब सेक्टर पे लोड पड़ चुका है। तो जो पेगासस ग्रुप के सीईओ है उन्होंने खुद ये एक्सपर्ट टॉक डिलीवर किया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का पोस्ट कोविड क्या स्कोप है। तो अच्छी बात थी कि पेगासस ग्रुप के सीईओ खुद उन्होंने ये एक्सपर्ट टॉक डिलीवर किया था। देन उसी तरह की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का क्या स्कोप है टेक्नोलैड ग्रुप द्वारा, वो भी एक्सपर्ट टॉक अरेंज किया गया था। फिर ऐसे ही इंडिया का जो वेस्टर्न सेक्शन है उसकी बीओजी मीटिंग अरेंज की हुई थी कि जो वेस्टर्न सेक्शन है ऐसे इंडिया का, तो उसके सारे जो ऑथोरिटीज है और वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई इस साल का क्या प्लान है, पिछले साल मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं आगे का मतलब इस साल का क्या फ्यूचर रहेगा ऐसा। तो मीटिंग भी जनरेट अरेंज हुई थी। तो ये तो के सारे एक्सपर्ट लेक्चर की मैं एक आपको बात खास बता दूं कि एक्सपर्ट लेक्चर में जो भी हमको एक्सपर्ट लेक्चर देने जो होस्ट होते हैं, जो एंकर होते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम पर्सन आएगा और आपको कुछ भी सिखा के चला जाएगा। दोज हु कम दे आर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स एंड ऑथोरिटीज, उनका कोई स्टार्टअप होता है या उनका कोई ऐसे इंडस्ट्री में ये वो काम करते हैं। तो बैकग्राउंड पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है कि उनके पास आपको देने के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है। तो ऐसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमको एक्सपर्ट डिलीवर करने के लिए आते हैं। सॉरी। Then let's talk about workshops. Workshop is one of the main thing because our motto itself says learning by doing. तो हम प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं। चलिए कुछ देखते हैं कि वर्कशॉप्स कौन से थे। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल व्हीकल डायनेमिक्स एंड उसके बारे में एक वर्कशॉप अरेंज हुआ था। 2 दिन का ये वर्कशॉप था जिसमें आपको व्हीकल डायनेमिक्स के फंडामेंटल सिखाए गए थे। Then there was a AutoCAD's workshop arranged by Mr. Hardik Goel. He is alumni of this college now and former president of SALDC club. ये उन्होंने ये वर्कशॉप डिलीवर किया था। सेम वे इलेक्ट्रिकल व्हीकल अवेयरनेस वर्कशॉप बाय ARAI। अभी ARAI जो है शायद आप में से ज्यादा को पता होगा कि ARAI इज ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ARAI है वो इंडिया की बहुत ही मतलब वैल्यूएबल और नोन ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके द्वारा एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल अवेयरनेस वर्कशॉप भी किया गया था LD कॉलेज में थ्रू SALDC। देन फोर्थ वाज प्रोसेस डिजाइन टू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ये वर्कशॉप था कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई डिजाइन है मन में, तो उसको आप एक डिजाइन से लेके टोटल एक प्रोटोटाइप तक कैसे ले जाए, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये कोई इजी प्रोसीजर नहीं होता कि एक डिजाइन को पूरी तरह एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना। तो उसके जो सारे स्टेप थे वो स्टेप बाय स्टेप हमको मिस्टर अमर रूपारेलिया, मिस्टर हार्दिक गोयल एंड मिस खेवना वसानी ने बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट किए थे। तो ये सारे कुछ वर्कशॉप्स थे जिनमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और ये एंजॉय किया था और नॉलेज उनका एनहेंस किया था। Next is a list of webinars. List of webinars is too long. We had COVID pandemic last year, तो उनकी वजह से सेमिनार करना तो पॉसिबल नहीं था। Then so we opt कि अगर चलो सेमिनार नहीं हो सकते तो हम फिर रुके क्यों, हम वेबिनार्स करते हैं। जो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो यूज करते हैं। लेकिन कुछ भी करके हम सेमिनार्स को डिजिटल फॉर्म में डिलीवर करेंगे, हम उसको वेबिनार का नाम देंगे। तो इसी तरह की हमारे SALDC टीम ने वेबिनार्स बहुत सारे अरेंज किए थे। पहला था टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो ये जो है वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल है, उसमें टेक्निकल कुछ था ही नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ लाइफ होते हैं कि लाइफ में सिर्फ इंजीनियरिंग करियर ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप इतने सक्सेसफुल भी है, लेकिन अगर आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है, आपके इमोशंस का कंट्रोल, तो फिर वो बहुत मायने नहीं रखता कि आप कितने सक्सेसफुल है, आपकी क्या इनकम है। तो ये सब समझाने के लिए टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ नाम का वेबिनार भी अरेंज किया गया था। एंड देन BS6 टेक्नोलॉजी इन कमर्शियल व्हीकल जो वेबिनार था वो मिस्टर अनुराग सक्सेना एंड मिस्टर प्रमोद निशात ने, अशोक लेलैंड के जो अथॉरिटीज है, उन्होंने ये वेबिनार किया था और इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। देन थर्ड वन वाज वेबिनार ऑन टू व्हीलर सर्विस एट होम। During this COVID lockdown pandemic, in this COVID pandemic and lockdown period, हमारे सारे व्हीकल्स घर पे पड़े रहते थे।
तो हमारे प्रेसिडेंट ने सोचा, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने सोचा कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि सब उनका टाइम पास भी हो जाए, उनको नॉलेज भी मिल जाए, और हम एक वेबिनार भी कंडक्ट कर सके, उनको उनके साथ फिर से कनेक्ट भी हो जाए। तो उसी तरह उन्होंने टू व्हीलर सर्विस एट होम की, जहाँ पे आप कुछ ज्यादा आपको टूल्स नहीं चाहिए या कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से ये टू व्हीलर सर्विस एट होम का कॉन्सेप्ट समझाया था। देन फोर्थ वाज फ्रॉम आइडिया टू इनकॉर्पोरेट कंपनी। ये हार्दिक गोहिल एंड मिस्टर मालव शाह के द्वारा डिलीवर किया गया एक वेबिनार था। फिर देयर वाज अ वेबिनार ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी एंड आल्सो एंड ऑन इंडस्ट्री 4.0। सो दिस वर द लिस्ट ऑफ वेबिनार्स। तो ये जो सारे वेबिनार्स है उनके उनमें मैं कई में खुद में एक पार्टिसिपेंट था, तो वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा भी नॉलेज इनहेंस किया था। सो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे एलडीसी का एक मेंबर हूँ तो मैं आपको ऐसा बड़ी बड़ी बातें दिखाने के लिए ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि मैं भी पहले इस ऐसे ही एलडीसी का जस्ट एक मेंबर था, फिर मैंने सारे इवेंट, सारे वेबिनार्स, वर्कशॉप सब अटेंड किए, और आज मैं आपको, मतलब मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसे एलडीसी में आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ऐसे एलडीसी क्या है और क्या काम क्या करती है। तो चलिए इस बात को अब आगे बढ़ते हैं कि विजिट्स, यानी मैं जैसे हमने पहले ही बोला था कि हम विजिट्स अरेंज करते हैं। तो आप 3 विजिट देख सकते हैं। एक जीएसआरटीसी नरोडा, जो जीएसआरटीसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नरोडा में, वहां पे एक विजिट ऑर्गेनाइज की गई थी 1 डे की। देन सेम वे रूबी बस की एक विजिट ऑर्गेनाइज की गई थी, और उसी तरह से वल्लभ विद्यानगर में एक विजिट ऑर्गेनाइज की गई थी। अभी इसमें क्या हुआ कि जो मार्च में, हम सब जानते हैं कि मार्च 2020 में कोविड पैंडेमिक आ गया, विजिट्स कंडक्ट नहीं कर पाए, जो कि हमारा डिजायर टाइम टेबल था कि हम, हाँ, इस महीने हम ये विजिट करेंगे, उस महीने ये विजिट करेंगे, तो वो पूरा नहीं हो पाया, वरना ये लिस्ट और भी लंबी होने वाली थी। और हम आशा रखते हैं कि इस बार हमारे साथ मेंबर कोऑपरेट करेंगे और ये पेंडेमिक ओवर हो जाए, एवरीथिंग गेट्स फाइन एंड वी विल बी अगेन एबल टू कंडक्ट द विजिट्स एंड fulfill our desire the timetable. Okay. Now one of the very main and very asked question कि अगर ये सारे टेक्निकल ही होते हैं तो कुछ नॉन टेक्निकल बंदों का क्या? ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग फील्ड में आया हुआ हर बंदा पूरा टेक्निकल ही हो, कुछ को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सोशल कामों में बहुत मजा आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक क्विज अरेंज की गई थी, ऐसी इंडिया स्टूडेंट कन्वेंशन। देन ऐसे ही ने एक ऑनलाइन चेस। I think Jay has stuck up because of net connectivity. So if anybody else who can share the present. Nirmit, can you continue? Hello, yes, am I audible? Yes, yes, please continue. Yeah. So सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जैसे कि जय बता रहा था कि सिर्फ टेक्निकल इवेंट्स हम फोकस नहीं करते, हम नॉन टेक्निकल इवेंट्स एज वेल एज। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट प्रेजेंट नाउ। Jay, is your connection stable now? You are mute actually. So sorry again. It was a connection glitch. Is it okay now? Yes, but your screen sharing is stopped. Okay, I'm sharing that. Can you make me remind where I was actually? On non-technical events The like gaming events. Games and quiz. yeah, yeah. Okay, okay. Sorry for the glitch, guys. Is it visible now, my screen? Yes, it is. Okay, thank you. So let us be again on our topic. Sorry for the glitch. Let me be on the page. Second, guys. Okay.
Is my screen perfectly visible, right? Can anyone comment? Yes, yes, Yeah. yes. Okay, thank you. As I have mentioned earlier, we have everything for everyone. सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो है ही, कि कुछ बंदों को मतलब क्विज पसंद है तो उनके लिए क्विज है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे इंडिया स्टूडेंट कन्वेंशन। फिर स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स का भी अरेंजमेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड था वो चेस चैंपियनशिप था ऑनलाइन, जिसमें मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 310 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स थे। देन कॉल ऑफ की गेमिंग इवेंट भी होती हुई थी। हम सब खेलते हैं ना वो एक्शन गेम्स, तो उनके लिए भी अरेंज की गई थी कॉल ऑफ ड्यूटी की ऑनलाइन चैंपियनशिप। and then some of their social events like replantation, अवेयरनेस वीडियो एंड बैनर्स। इसमें जो कोविड अवेयरनेस का था वो टास्क, उसमें हमारी टीम ने कोविड अवेयरनेस के बारे में वीडियोस और बैनर्स बना के उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए थे। देन काइट्स एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक सोशल स्टेप था कि जो बच्चे हैं उनमें काइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहां पे जाके। देन ऐसे इंडिया स्टूडेंट कन्वेंशन, इसमें तो बहुत ही सारे इवेंट थी, उसका लिस्ट बहुत ही लंबा है। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो टीम है हमारे सीआईबीसी की, वो हर तरह के इवेंट्स परफॉर्म करती है, ना कि सिर्फ टेक्निकल या सिर्फ नॉन टेक्निकल। आप क्विज, स्पोर्ट्स, सोशल इवेंट्स, एवरीथिंग वी डू। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मतलब आप कोई भी हो और ज्वाइन हो जाए तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो मिला ही रहेगा। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि आप ना कि सिर्फ ऐसे एलडीसी के मेंबर बनते हैं, उसके सारे इवेंट्स में फ्री में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, प्लस आपके जो स्किल्स है उस पे भी फोकस पड़ेगा, वो एनहेंस होगी, नई नई स्किल्स डेवलप होंगी। देन आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आपके फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन बढ़ेंगे, आपके कुछ अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्शन डेवलप होंगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरे को ये करना है, ये करना ही है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक काम दे दिया जाएगा और ये कर दो। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सिखाया जाएगा। सो हियर समथिंग फॉर एवरीवन। Now, these are some glimpse images of the events as I mentioned. That Call of Duty, then some expert lectures. Then bottom left is a BOG meetings image. Then bottom center is a tree plantation and COVID awareness banners. Then here first one is a process design to prototype workshop, as I have mentioned earlier. Then kites distribution, then electrical vehicle awareness, and a chess championship and a Ruby bus visit. Then some meetings, some visits, two-wheel videos that how to jumpstart and two-wheeler service at home. Then a webinar, and somewhere expert lectures and talks and conversation that you can participate. These are the photos of early 2020 year, जिसमें हम early 2020 में हम कॉलेज में थे और वहां पे हम ये सारे इवेंट के फोटोग्राफ्स ले सके। और जो मेन बात ये है कि ये सारे इवेंट्स हमने जो टोटल इवेंट्स किए थे उसके अबाउट 30% ही है। तो अगर मैं पूरा लिस्ट लेके आऊँ और सब आपको सब इमेज दिखाने चाहूँ तो प्रेजेंटेशन बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो ये कुछ मेन हाईलाइट इमेजेस है जो आप देख सकते हैं। ना अभी आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि ये जो इवेंट्स है वो तो फॉर्मर टीम ने की है, मतलब ये जो 2020 में हुआ, इस साल का क्या? ये आपको पार्टिसिपेंट तो इस साल में बनना है, तो इस साल आपके लिए क्या है? तो वी डेफिनेटली बिलीव दैट कि अगर पिछले साल कुछ अमाउंट ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं तो हम डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि उससे ज्यादा हो, उससे बेटर हो, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन इम्प्रूवमेंट। कि हमने जो पिछले साल किया था या जो हमने पीछे किया था उससे तो हम आगे बेटर ही करेंगे। तो अगर आप एसएलडीसी के पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आपने जो देखा उससे भी बेटर आपको मिलेगा, कि उससे भी बेटर इवेंट्स में, उससे भी बेटर वर्कशॉप, वेबिनार, सेमिनार्स एंड कॉम्पिटिशंस, उन सबका आप हिस्सा बनेंगे। Now our core committee, our core team of SALDC, it is batch 2020-2021. First, our faculty advisor,
Professor Mazhar Sheikh sir and Professor Jayendra B. Vasani sir, who always provide us a guidance in any matter we need. ऐसा नहीं है कि हम अभी मतलब कभी भी उनको फोन कर दे, वो कभी भी हमको ना नहीं कहते और पूरी एनर्जी के साथ हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाते हैं. तो they are very friendly and very understanding advisor to us. Then student chairperson is Mr. Kripal Ditroja. Our vice chairperson is Shamka. Our secretary is Soumitra Jha. Our membership committee is Mr. Jay Sharma and Mr. Yashish Shah. Our treasurers are Mr. Mohit Rajpurohit and Mr. Rushit Vekaria. Our program chair is Mr. Prajapati Divyesh and Mr. Rajput Roshan C. Our reception chair owners are Mr. Nirmit Bhatt and Mr. Patel Priyansh. Our supporting members are Mr. Hemil Patel, Mr. Yamin Patel, and Mr. Nachiket Chan. So this is the core team of SALDC through which you are getting this orientation program. अगर आप SALDC के बनना चाहते हैं तो आपके भी नाम इसमें जुड़ सकते हैं. क्या पता कि अगर आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो, आप पूरे दिल से इस टीम में काम कर सके, तो इस आप भी अगले साल नाम में आ जाइए, पर या शायद इसी साल आपका नाम इस कमेटी में आ जाए. और अगर आप जस्ट मेंबर बनते हैं तो भी आप हमारी कमेटी में ही तो रहेंगे. जो सारे अपडेट्स है, जो सारे इवेंट्स है, उनकी सारी बातें आपसे शेयर की जाएगी. मतलब जितना हम करते हैं उतना ही आपको करने को मिलेगा. नाउ मेन क्वेश्चन, हाउ टू ज्वाइन टीम SALDC. ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये सारे इवेंट्स करती है, सारे चैंपियनशिप वगैरह. तो जो एंथुसियास्ट है, जो ऑटो या मैक की बंदे हैं, वो तो मतलब आएंगे ही आएंगे. उनको उनका ये मेन फील्ड है. और जो ऑटोमोबाइल वाले हैं, उनको तो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही की मेंबरशिप लीजिए ही लीजिए, क्योंकि आपके जो कोर ब्रांच के रिलेटेड सारे काम होते हैं वो यहाँ पे मेजर होते हैं और आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा और सारे फैकल्टीज भी इसके साथ कनेक्टेड हैं. तो यू विल श्योरली गेट बेनिफिट्स. तो टीम SALDC ज्वाइन कैसे कर लेते हैं, तो उसके 2 स्टेप्स हैं. मैं आपको समझा देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे अभी है और जिनको SALDC टीम ज्वाइन करना है, तो उनके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है. तो ये फॉर्म हम 3 जगह पे डालेंगे. पहला है गूगल मीट चैट सेक्शन. अभी हमारे वन ऑफ द टीम मेंबर यहाँ पे आपको चैट सेक्शन में लिंक दे देंगे. फिर जो पे नहीं जो ज्वाइन हो पाए उनके लिए YouTube लाइव में भी है. और अगर आप का कोई फ्रेंड है या कोई भी है जो यहाँ पे भी ज्वाइन नहीं हो पाए, गूगल मीट में भी नहीं है, YouTube लाइव में कहीं भी नहीं है, तो उनके लिए हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है इट इज SALDC. तो उस पेज के बारे में भी उस फॉर्म के लिंक है. तो वहां पे जाइए, फटाफट से वो लिंक में अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए. और जैसे ही आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके कुछ घंटों बाद आपको हम एक पेज देंगे और उसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी. उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी चलिए देखते हैं. तो आपको SALDC के मेंबर बनने के लिए पहले ये फॉर्म फिल करना है, एक मेंबरशिप लेनी है. ये मेंबरशिप SAE इंडिया की है और इसकी एनुअल फीस है 472 रुपीज. इसके प्लान भी है, यानी मीन्स 2+1 years का भी प्लान है मेंबरशिप का. देन इट इज आल्सो 4+1 year प्लान. बट वी पर्सनली रिकमेंड यू टू 1 year मेंबरशिप. एनुअल मेंबरशिप लीजिए, वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है. अभी कुछ को ये मन में सवाल हो रहा होगा कि ये तो आखिर घूम फिर के पैसे पे ही आ गए कि हमको जो क्लब ज्वाइन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. तो शायद आप गलत है दोस्त, ऐसा नहीं है. आप जो ये फीस पे कर रहे हैं वो आप SAE इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहे हैं, ये आप SALDC को पे नहीं कर रहे. आपको पहले एज निर्मित से दैट SAE इज अ चेन. SAE first is there is a SAE International, then under SAE International there is a SAE India, and under SAE India in Western section SALDC. तो ये पूरी एक चेन है. तो जो आप ये फीस पे कर रहे हैं वो SAE इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की आएगी, हमको नहीं मिलेगी. इसमें से SALDC को कुछ नहीं मिलने वाला. और एक बात बता दूं कि ये 472 रुपीज की जो एनुअल अमाउंट आप फीस पे कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो आप उसके बेनिफिट्स लेंगे उससे तो बहुत ही कम है. चलिए मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से कि जो SAE इंडिया, अब मैं बात करूंगा सिर्फ SAE इंडिया की, अभी मैं SALDC की बात नहीं कर रहा हूँ. जो SAE इंडिया है जिसकी आप मेंबरशिप लेने वाले हो 472 रुपीज आप पे करके, तो वो भी अलग से उसके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार, वेबिनार्स, वर्कशॉप एंड इवेंट अरेंज करती है.
अभी आप ये सोचेंगे कि यार ये बात घूम फिर के सेमिनार वेबिनार वर्कशॉप पे ही क्यों आ जाती है? तो जो ऐसे एलडीसी की जो टीम है वो जो वर्कशॉप एंड वेबिनार सेमिनार अटेंड करती है और उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उसके मुकाबले ऐसे ही इंडिया जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है और उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं कि देयर इज अ लिमिट ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे ऐसे एलडीसी इतना कर सकती है और ऐसे ही इंडिया एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा कर सकती है। उनके जो एक्सपर्ट्स और जो ऑथोरिटीज आएंगे उनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो वेबिनार्स और सेमिनार जो ऐसे इंडिया करती है, जो इवेंट्स करती है, फिजिकल इवेंट्स भी ऐसे इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, तो वहां पे जो जाने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है उसके इवेंट्स के लिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसकी जो फीस है वो कंपेयरिंग टू नॉन एसए मेंबर आपको सिर्फ आधी पे करनी है। यू आर पेइंग हाफ ऑफ द फीस कंपेयरिंग टू ए नॉन एसए मेंबर। ऐसे मेंबर है तो आप फॉर एग्जांपल उसकी अमाउंट चलो कि 500 उसकी अमाउंट है, 500 अमाउंट फीस एट लेट्स से सेमिनार, तो जो ऐसे ही मेंबर्स है उसको अराउंड 250 या 200 ही पे करना होगी, तो आपको डबल बेनिफिट्स है। फर्स्ट वन कि आप ऐसे एलडीसी के मेंबर बन गए, मेंबरशिप आपकी आ गई तो आप उसके सारे इवेंट्स के एलिजिबल हो गए, चैंपियनशिप के एलिजिबल हो गए, साथ ही साथ ऐसे इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल उसके लिए भी आप एलिजिबल हो गए। और हाँ, वन मोर थिंग कि जो ऐसे इंडिया जब वो फिजिकल इवेंट्स भी करती है वहां पे जाके आपको परफॉर्म करना होता है वो वाले इवेंट्स, तो उसमें आप वॉलंटियरिंग भी कर सकते हैं अगर आप ऐसे की मेंबर हो, तो उसके भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। एक्चुअली सर्टिफिकेट्स आपको इन सभी इवेंट्स के मिलेंगे, चाहे वो ऐसे एलडीसी के हो या ऐसे इंडिया के हो, सर्टिफिकेट्स आपको सभी के मिलेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि आई नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द यूज ऑफ सर्टिफिकेट्स और हाउ हेल्पफुल द सर्टिफिकेट्स आर। ये आप सबको पता ही होगा कि सर्टिफिकेट्स कितनी काम की चीज है। सो दिस बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम ऐसे मेंबर कि आप ये सारे इवेंट्स अटेंड कर पाओगे। उससे होगा क्या कि आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो स्किल्स है वो एनहेंस होगी। जरूरी नहीं है कि सबकी टेक्निकल ही बढ़े, सबकी नॉन टेक्निकल ही बढ़े। कोई ऐसा बंदा है कि जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आपको मार्केटिंग भी करने को मिलेगा कि ये जो हमारी टीम्स है सारी वो चैंपियनशिप वाली एटीवी की जो एलडीएमएस टीम है, देन F1 का की वो जीटीएमएस टीम है, तो उनके लिए भी आपको मार्केटिंग करना होगा, तो उनके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। किसी को अब मानो कि एक्सप्लेनेशन देने का शौक है, प्रेजेंट करने का, बीइंग अ रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है कि भाई चलो मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो शायद मुझे लगता है कि ऐसे एलडीसी मुझे नहीं दे सकता, तो आप यहाँ पे मुझे बता दीजिए या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। दैट्स अप टू यू नाउ कि हम तो कहते हैं कि मतलब सबको सब कुछ मिलेगा एंड वी प्रूव दैट। अपने पिछले इमेजेस भी देखे, लिस्ट ऑफ इवेंट्स भी देखे, तो इट वाज अ कोविड लॉकडाउन पीरियड, स्टिल आवर टीम हैज मैनेज्ड टू डू 27 इवेंट्स इन दिस दैट लॉकडाउन पीरियड, सो इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। नो अदर क्लब हैज डन दैट। As ADC being the largest club, its number of events is also largest. तो आपको पता चल ही हो गया होगा कि ऐसी हार्ड सिचुएशन में भी ये टीम ऐसा परफॉर्म करती है, तो सॉफ्ट में तो क्या ही क्या करेंगे। और ये बात शायद आप सबको पहले नहीं पता होगी कि ऐसी एलडीसी जो टीम है वो मतलब अपनी क्लब का, अपनी टीम का एज ए पब्लिश नहीं करती ज्यादा कुछ, की ऐसा नहीं है कि हम रेगुलरली अपने पेज को शाउट आउट देते हैं या अपनी टीम को ऐसा हर बार मेंशन करते हैं। ऐसी एलडीसी वर्क्स साइलेंटली। बहुत कम बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसे एलडीसी लाइमलाइट में आती है और आपको दिखाती है, जैसे कि आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आवर क्लब हैज डन, वैसा आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम काम करते हैं वो आप समझ ही गए होंगे कि कितना बढ़िया होता है। तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। आई एम अबाउट टू एंड दिस सेशन। One or two things are left, but before that let me just tell you that if you have any queries, any questions, feel free to ask here by turning on your mic or putting your question into a chat section. So you can do it now, you have time. Any one of you have the question, turn on your mic and ask. How can I join LDMS?
ओके, सो जो आप एलडीएमएस के बारे में अगर इंटरेस्टेड है, तो एलडीएमएस का जो एडिशन प्रोग्राम है इसके जैसा, वो 26 को हमने अरेंज किया है। तो उसके लिंक भी आपके क्लास ग्रुप में आ जाएगी सीनियर्स के थ्रू, और वहां पे आप उसका ओरिएंटेशन अटेंड कीजिए और उसकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए विद ज्वाइनिंग एलडीएमएस। एनीवन एल्स? एंड यस नीलेश, आपने पूछा ना कि एलडीएमएस आपको ज्वाइन करना है, तो एलडीएमएस बेसिकली वर्क अंडर द एसएईएलडीसी। सो अगर आप एलडीएमएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एसएईएलडीसी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अगर वो ज्वाइन करना है आपको, क्योंकि एसएईएलडीसी के अंडर ही एलडीएमएस टीम आती है, तो आपको वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा साथ में। यस कृपल, एग्जैक्टली। जो ये सारे इवेंट्स मैंने आपको अभी दिखाए, जो सारे इवेंट्स है वो ऐसे ही के अंदर ही मैनेज किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी इवेंट में जा रहे हो, आपको ऐसे इंडिया की मेंबरशिप तो लेनी ही होगी। जब आई मेंशन दैट 470 रुपीज एनुअल फीस, वो आपको पे करके आपकी मेंबरशिप लेनी होगी। उसका आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा, आपका नंबर मिलेगा, वो आप हमको ऐसे ही के डेटाबेस में दीजिए। आप ऐसे की मेंबरशिप के थ्रू इन सारे इवेंट्स में, सारे चैंपियनशिप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, here are three contact numbers of our team. First one is me, second one is our treasurer, sorry, our secretary Sombit Raja, and third one is our president. So आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बाद में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो फील फ्री टू कॉल एनी टाइम, वी विल पॉजिटिवली आंसर यू। तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तो, ताकि आप अगर फ्यूचर में भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली एनी टाइम आप कॉल करके हमको पूछ सकते हैं। So I guess there is no one who has question right now. Yeah, so a small thing to all the members, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी हमारी टीम ने एक लिंक शेयर करके रखी है गूगल फॉर्म की, तो आप सभी को वो फिलअप करना है अभी जाने से पहले। ठीक है, सेशन एंड होगा वैसे ही आप लोगों को वो गूगल का फॉर्म में आपकी डिटेल्स भरनी है। ये है कि हम लोग काफ़ी सारी इवेंट्स ऐसी है, कुछ इवेंट्स ऐसी वो फ्री में भी करते हैं और काफ़ी सारी इवेंट्स है जो पेड बेसिस पे, तो उसकी जो अपडेट्स है वो सारी इवेंट्स को आप तक पहुंचाने के लिए आपकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स चाहिए। तो इफ यू पीपल कैन फिल अप दोस डिटेल्स राइट नाउ, सो वी कैन अप्रोच यू फॉर सर्टेन इवेंट्स आपके पार्टिसिपेशन के लिए। तो भूले बिना वो फॉर्म में आपकी डिटेल्स भर दीजिए। और दूसरा, जिसको मेंबरशिप बनना है, मेंबर बनना है, उसकी भी लिंक यहाँ पे शेयर की है, तो वो भी आप कर सकते हो। और उसमें भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एनी ऑफ आवर टीम मेंबर्स। बट यस, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। अच्छा, पंचाल मीत ने क्वेश्चन पूछा है कि इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटीज गिवन बाय एसईएलडीसी। एग्जैक्टली, अगर आप देखें तो जैसे पहले आपने कॉम्पिटिशन्स जो 4 आपको दिखाई है यहाँ पे, जो एलडीएमएस की टीम है इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, कि अगर आप एलडीएमएस में ज्वाइन करते हो आगे जाके, तो आप एक पूरी व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसमें आप अपने आइडियाज़, डिज़ाइन, सब कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। उसी तरह सुपरा की जो बात की है कि फार्मूला और रेसिंग कार आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करोगे, ऐसा नहीं है कि आप ऑन पेपर सब काम कर रहे हो, ऑन फील्ड आपको काम करने मिलेगा। तो वो सारी इवेंट्स, गो कार्टिंग, ईजीबीसी जिसमें आप लोग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो सारी इवेंट्स ऐसी है कि जो आपको ऑन एंड प्रैक्टिस मिलेगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू पीपल। एंड इसके अलावा सेमिनार, वेबिनार्स, वर्कशॉप तो है ही है, जिसमें आपको अलग अलग डोमेन्स के ऑन हैंड प्रैक्टिस मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने आर्डिनो के वर्कशॉप्स किए हैं, उसके अलावा हम लोगों ने ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वर्कशॉप्स किए हैं, काफ़ी सारे जनरलाइज्ड वर्कशॉप किए हैं, कॉमन वर्कशॉप्स है, काफ़ी सारे ऐसे वर्कशॉप है जो अभी जय ने बताया कि हर एक डोमेन के हैं, आईटी के हैं, कंप्यूटर के, इलेक्ट्रिकल के, तो हर फील्ड में वर्कशॉप्स जो है वो ऑन हैंड प्रैक्टिस आपको देता है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारा स्कोप है आपके लिए इनोवेशन के ओरिएंटेड। आई थिंक टुडे कृपल वाज नॉट एबल टू शेयर द वीडियो, बट वेरी सून अगर आप लोग हमारी एलडीएमएस की चैनल, ये एलडीसी की चैनल पे जाओगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे ये मैन्युफैक्चरिंग के वीडियोस मिलेंगे, या तो फिर वो लोग फिर से अपलोड करके आपको भेजेंगे। तो डेफिनेटली इट इज़ वर्दी टू ज्वाइन, जिसको सही में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग।
और हर एक डोमेन में एक्टिविटीज है, तो यस इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। बट यस प्लीज़ वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, बेसिक डिटेल्स ही आपकी, और कुछ नहीं है। तो हमें जो इवेंट्स करनी है वो हम लोग आप तक पहुंचा सके, उसी के लिए। थैंक यू सर। तो सर ने आपके सारे मतलब डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं, तो अगर स्टिल किसी को है तो कह दीजिए, अदरवाइज आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। किसी को कोई क्वेश्चन है? और अगर आप लोग कोई मेंबरशिप के लिए फिलअप कर लेते हो फॉर्म, तो प्लीज़ एक बार ये कोर कमेटी मेंबर्स या किसी को भी एक बार अपडेट दे दीजिएगा दैट यू पीपल हैव डन द प्रोसेस, जैसा अभी जय ने भी बोला है। लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखना आप लोग कि आपको एक बार इनको बोल देना ताकि इनके रिकॉर्ड्स में रहे, तो इट गेट्स इजी फॉर दिस पीपल टू कम्युनिकेट विथ यू पीपल। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ बताइए। यस, एंड वन मोर थिंग एवरीवन, कि आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद आप जब फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो कुछ घंटों बाद या कल सुबह आपको एक मेल आएगा ऐसी एलडीसी की तरफ से, जिसमें आपको 2 लिंक्स होगी कि अगर आप ऐसे एलडीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसका भी उसकी लिंक आपको उसमें मिल जाएगी, वहां आके आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड द सेकंड लिंक वाज विल बी फॉर ज्वाइनिंग ऐसे मेंबरशिप। तो आप ऐसे ही मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक आपको उस मेल में मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके अपनी मेंबरशिप डायरेक्ट ले सकते हैं। एंड देन यू शुड इन्फॉर्म अस कि आपने मेंबरशिप ले ली है, तो हम अपने डेटाबेस में आपका मेंबरशिप नंबर के साथ वो सेव कर सकें। Kripal, there is comment into the section. If you can share the link once again to these people. Yes, yes, sure. एंड दूसरी सिंपल बात है, आप जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, कि अगर आप देखें जैसा अभी जय ने बताया यहाँ पे भी दैट ऑलमोस्ट 45 इवेंट्स, ठीक है, तो इतनी कोई भी क्लब नहीं करता होगा अगर आप देख लो कहीं पे भी, और वो भी सब डोमेन की। तो डेफिनेटली हर फील्ड में इतनी सारी इवेंट्स ये क्लब कर रहा है, तो दैट इज़ मोर एक्टिव। और ये जो अमाउंट पे कर रहे हो, जैसा फिर से मैं बोल रहा हूँ, जय ने बोला यही है, तो यू आर नॉट पेइंग टू द क्लब राइट नाउ। वो ऐसे ही का कंपल्शन है, इसलिए वो पे करना पड़ता है, वरना हम लोग हो सकता है तो वो भी नहीं रखते। बट दैट इज कंपल्शन प्रोवाइडेड बाय ऐसे इंडिया, जो हायर अथॉरिटी, मतलब जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसकी डिमांड है। इसके लिए वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे करना है। यू आर नॉट पेइंग अ सिंगल रुपी टू द क्लब, आप क्लब को एक भी रुपया नहीं दे रहे हो। तो क्लब पूरा ये चीज़ आपको उनके हिसाब से फ्री में ही एक तरह से आपको दे रहा है। तो जो ऐसे मेंबर्स है उसके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि इतनी सारी इवेंट्स आपको एक तरीके से फ्री में मिल रही है। तो डेफिनेटली इट इज वर्दी। यस सर, लास्ट टाइम का वीडियो में दिखाना चाहूँगा, अच्छा, यूट्यूब में से ही। I think audio is not coming actually. If your mic is off, can you please check it? That's fine. I think we can share the link of those videos to these people. जो हमारे participants है, वो आप लोग ऐसे ही क्लब की चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो you will get this thing कि काफ़ी सारी events और activities हुई है। तो it is really worthy, जिनको ऑन हैंड प्रैक्टिस करनी है, जिनको सही में टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑब्टेन करनी है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा अभी क्लब ने नॉन टेक इवेंट्स पे भी काफ़ी फोकस किया है, गेमिंग इवेंट पे भी काफ़ी फोकस किया है। तो डेफिनेटली इट इज़ वर्दी। आप या आपके फ्रेंड्स जो भी हो सकते हो, यू पीपल कैन ज्वाइन फॉर अस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेरी ना हो तो वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। I think Mazhar sir is also. And that's it when Mazhar sir is a person. Okay, so that's it. Can we go for the conclusion? Sorry, Jayendra. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sorry to interrupt you. Yes, sir. Actually,
My mic is off. Okay, sir. Please say. Yeah. Good evening, all of you. Actually, I would like to say nothing to say because everything is cleared. Jay had cleared everything. I don't think so. You should have any doubt. Only thing I say that we are believing learning by doing. We are just not giving you input and input. You have to come out and you have to do and you have to do your best. Definitely you get a better learning. Right? So all the best, guys. And one more thing I like to say, there are three compulsion as far as your syllabus is concerned, or as far as GTE guideline. We have 100 points, we have an internship, and of course placement is your concern. Fine. And by SAE LDC club, I think these three needs definitely going to be fulfilled. Fine. So all the best, guys, and be LDC SAE college club. And I'm waiting for you all, guys. Fine. Bye. Thank you, Mazhar sir. Very important point mentioned by Mazhar sir. You all guys must notice that point and keep it in mind. Okay, so I would like to conclude this session now, and I'm very positively hoping you all guys to see you in the club very soon. So you can leave now. I'm concluding the session. Thank you, everyone. Bye. Till then, take care. And yes, if anyone have any queries, feel free to ask anytime. Given number.